सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै। गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन अगन कटहें सब तेरे। गुर कुंजी पाह निवल मन कोठा तन छत। नानक गुर बिन मन का ताक ना उगड़ै। अवर ना कुंजी हाथ हर सिमरत मन तन सुखी। बिनसी दुतिया सोच नानक टेक गोपाल की। गोविंद संकट मोच बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै। प्रतख गुरु निस्तारे। कोट पराध हमारे खंडह अनक विधि समझावहो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहो। जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार दियां हाजरियां भरदे होए गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रहमत है जो सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ हजूरी अंदर जुड़ बैठण का सुभाग आपां सबनां नूं प्राप्त होया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमय हजूरी अंदर जुड़ बैठ के आप जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमय बाणी का रस प्राप्त कर रहे सी। मनुखता दे भले लई गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो सानू पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं। चल रही लड़ीवार गुरु शब्द की विचार दे विचों अज दा सतगुरु सच्चे पातशाह जी का पवित्र उपदेश आप जियां ने सरवण कीता है। अज दा ये पवित्र उपदेश सोरठ राग दे विच, सोरठ राग दी वार दे विच
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਏ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 650 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁੜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੇ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਡਤ, ਭਾਵ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਮਝਦਾਰ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਾਂ ਮਨ ਜਾਂ ਕਾਦੀ ਜਾਂ ਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਰਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਹੀਣ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਇਆ। ਹੇ ਭਾਈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੁੜਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਰਖਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਉਸ ਕਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰਾ, ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਗੁਰ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਖੈਰ, ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮੂੜੇ। ਮੂੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੁਦਰਾ, ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਰਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਜੂਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕੋ ਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੁੱਢ ਹੋ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਓ, ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਅਭਾਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਂਡਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਤੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤੂੰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਪੜਨਾ ਗੁੜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਪੜਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜਨਾ, ਗੁੜਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਜੋ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵਕ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ। ਪੜਿਆ ਵੀ, ਪੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕੇਵਲ ਧੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲੱਗ ਹੈ ਆਨ ਸੁਆਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨਾ ਸੀਜਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋੜੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇਵਲ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਕਾਏ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ, ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਵੀ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
फिर किसी व्यक्ति दे कोल जाके दातां दी चाहना लैके मंग कर रहे हैं। सतगुरु जी बख्शिश करन, साडी दशा वो है पढ़ना गुड़ना संसार की कार है। वो पढ़िया ते विचारिया केवल एक धंधा है, केवल कर्म कांड बन के रह गया। अज साडा बहुत वड्डा दुखांत है, पढ़िया भी बहुत है, विचारिया भी बहुत है, मुआफ करना केवल कर्म कांड बना के रख लिया, केवल उन्होंने धंधा बना के रख लिया, केवल रोटी का साधन बना के रख लिया, उन्होंने जीवन बनाउणा सी। ये नुकता साडे जीवन दे विचों, साडी समझ दे विचों दूर चले गया। साडी दशा किहो जी बन गई, पढ़ के ते विचार के। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी का एक बड़ा प्यारा बचन, अपना आप ना पछाणै मूड़ा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते कहते ने, वेखो इस मूर्ख मनुख की दशा कैसी। इन्हें पढ़िया भी है, इन्हें विचारिया भी है, पर इन्हें अपने आप को पहचानिया नहीं। ये नहीं घोखिया कि जो मैं पढ़िया है, जो विचार रहा, मेरा जीवन उहदे मुताबिक है या नहीं है, मेरा जीवन उस मार्ग ते चल रहा कि नहीं चल रहा। दूसरिਆਂ ਨੂੰ तो कह रहा, भाई देखो गुरु साहब जी का बड़ा प्यारा बचन जी, जो गुर कहे सोई भल मानो। आप खुद गुरु दे कहे हुए नूं सत करके जीवन विच मन रहा कि नहीं मन रहा। दूसरिਆਂ ਨੂੰ तो कह रहा, देखो हर इको दाता सेवी है, हर एक धियाई है। आप किते व्यक्तियां दे अगे झोलियां ते नहीं अड रहा। अपने जीवन नूं घोखना, अपने जीवन नूं पड़तालना। सतगुरु जी बख्शिश करन, असल दे विच विद्वता दा अर्थ हुंदा जे अपने जीवन दी पढ़ाई पढ़नी। जो ग्रंथां चों पढ़िया है, जो असी धार्मिक पुस्तकां चों पढ़िया है, जो बाहरी ज्ञान मिलिया है, उन्होंने अपने जीवन दे विचों भी देखना। जो गुरबाणी विच गुरु जी कह रहे हैं, जीवन मेरे विच गुण है या नहीं है। जेड़े रब्बी गुणां दी गल बाणी विच दसी है, मेरे जीवन विच रब्बी गुण हन। गुरबाणी निरभौ दी गल करदी है, मेरे जीवन विच निरभौता दा गुण है। गुरबाणी निर्वैर दी गल करदी है, मेरे जीवन दे विच निर्वैरता दा गुण है। गुरबाणी सच दी, सिदक दी, सबर दी, धीरज दी, खिमा दी गल करदी है, ये रब्बी गुण मेरे जीवन विच हन। जे ते रब्बी गुण जीवन दे विच हन, पढ़िया भी मुबारक, विचारिया भी मुबारक। ते गुरु अमरदास पातशाह जी बख्शिश करते हैं, जे अंदर तृष्णा ते विकार ही भरे हुए ने, याद रखना फिर पढ़ना गुड़ना संसार की कार है। ये केवल ते केवल एक दुनियावी धंधा है। अपना आप ना पछाणै मूड़ा। गुरु साहब जी बख्शिश करते कहते, देखो इस मूर्ख मनुख की तस्वीर कैसी बन गई। अपने आप की पहचान नहीं जे कर रहा, अपने जीवन नूं नहीं घोख रहा। आप काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे नाल भरिया होया है। अपने जीवन विच दुनिया दीयां बुराइयां ने। आप ते कदी वाहिगुरु परमात्मा दा नाम लिया नहीं। अवरा आख दुखाए, दूसरियां नूं चोटां ला ला के दूसरियां नूं दुख देण दी कोशिश कर रहा है। वेखो मनुख दी तस्वीर कैसी, दशा ऐसी। आप ना देह चुरू भर पानी। अपने विच ते इन्नी समर्था नहीं, किसी नूं एक चूड़ी पानी दी दे सके। ते निंदे जिह गंगा आनी। आप ते मन मतियां दे अगे अपना जमीर वेच चुकिया है। उन्होंने गव्यंग कस कस के उन्होंने दिखाउण दी कोशिश करते हैं, जेड़े सिद्धांत ते जमीर जगाउण दी किते गल करते पे। वेखो कैसी तस्वीर बन गई मनुख दी। गुरु बख्शिश करे, अपना आप ना पछाणै मूड़ा। अवरा आख दुखाए, मुंडे दी खसलत ना गईया। अंधे विछड़ चोटा खाए। आ जिहड़ी मुढ़ दी वादी बनी हुई सी ना, इहदे अंदरों नहीं गई। अज्ञानता दे अंधेरे च अन्ना होया है। हथ दे विच दीपक भी है, फिर भी खूह दे विच जाके डिग रहा है।
बाणी पढ़ता भी है, विचारता भी है, फिर भी जीवन सतगुरु परमात्मा तो विछड़िया होया है। बाणी पढ़ता जीवन की सांझ फिर भी रब जी नाल नहीं बड़ी। बाणी कोल है, पढ़ता है, बड़े बड़े प्रमाण दे के समझाउंदा है, माफ करना सतगुरु परमात्मा दे उत्ते यकीन फिर भी नहीं अपने आप नूं बढ़िया। आप फिर व्यक्तियां दे झोली दे विच अंधे। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, अज्ञानता के अंधेरे दे विच अन्ना है। समझ लैना सतगुरु जी ने उसनूं अंधा किया है जिहड़ा अपने जीवन नूं नहीं देख सकता। अन्ने दा अर्थ केवल यह ना समझ लेना जिहड़ा दूसरिਆਂ ਨੂੰ नहीं देख सकता। सब तो वड्डा है कि जिहड़ा अपने जीवन नूं नहीं देख सकिया ਉਹਨੂੰ समझ लेना सब तो वड्डा अन्ना है। ਉਹਨੂੰ अंधिਆਂ ਦਾ भी अंधा किया बाणी दे विच, अन्निਆਂ ਦਾ भी अन्ना जिहड़ा खुद नूं नहीं देख सकिया असल दे विच मैं की सी ते बन की गया। जिहड़ा यह नहीं अजे तक समझ सकिया प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रह। जिहड़ा यह नहीं देख सकिया जपजी साहब विच गुरु जी की समझा रहे ने ते मैं अपने जीवन विच की कर रहा। दावा करदा मैं 25-25 जपजी साहब दे रोज पाठ करदा, गुरु दा बचन ते एक भी जीवन दे विच अजे तक दिखाई नहीं दिता। इनू की कहांगे, पढ़ना गुड़ना संसार की कार है। इनू की कहांगे, अंधे विछड़ चोटां खाए। अज्ञानता दे अंधेरे विच अन्ने ਜਿਹੜੇ अपने जीवन ਨੂੰ नहीं देख सके, जीवन ਨੂੰ नहीं पड़ताल सके, जीवन ਨੂੰ ही नहीं घोख सके, जिन्हां दे अंदर कुट-कुट के ईरखा नफरत ते द्वैत भरी हुई है। गरीब नवाज सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, बेशक वो किन्ना भी पढ़ते ते विचारते ने, पर वो अन्ने ने आत्मक तल ते मालिक तो टुटे हुए विछड़े हुए ने, सवाए ठोकरां तो उन्होंने होर कुछ नहीं जे मिलता। चोटां ही खांदे ने, मारां ही खांदे ने। सतगुरु जी की बाणी का दीपक कोल है, परंतु फिर दर दर दियां ठोकरां। गुरु बख्शिश करे किते नुकते साडी पकड़ विच आउण। मुंडे दी खसलत ना गईया अंधे विछड़ चोटां खाए, सतगुर कै भै भन ना घड़ियो। सतगुरु जी का पवित्र शब्द समझने की कोशिश करिए। बड़ा दुनिया का ज्ञान इकट्ठा कर लिया, बड़े ग्रंथ पढ़े ते विचारे भी है, पर सतगुरु के भै विच, सतगुरु के अदब विच, सतगुरु के सत्कार दे विच, निर्मल भौ दे विच, अपने जीवन दे विचों अपने ये कह लीए कि वखरी हस्ती का जिहड़ा असीं एहसास पाल के बैठे हैं, उन्होंने अजे तक भन्निया नहीं। अपने अंदर दे हंकार नूं तोड़िया नहीं ते अपने जीवन नूं सतगुरु दे शब्द दे मुताबक घड़िया नहीं। सतगुर कै, सतगुरु दे भै, भै दा अर्थ है अदब, डर, डर दा अर्थ आपां कह सकते निर्मल भौ, भन अपने अंदर दा हंकार, अपने अंदर दे विकारां वाला जीवन। सतगुरु दे भै दे विच, सतगुरु दे हुक्म दे विच रह के अपने अंदरों विकारां वाला जीवन अजे भन्निया नहीं। तकनी च अजे भी ईरखा ते नफरत है। अखां दा जीवन ईरखा ते नफरत नाल अजे भी भरिया है। जबान दा जीवन अजे भी क्रोध दे बोलां नाल भरिया है। जबान दा जीवन अजे भी रसां कसां दे चस्कियां नाल भरिया है। कन्ना दा जीवन अजे भी चुगली निंदिया नाल भरिया है। समुचे शरीर दे इंद्रियां दा जीवन अजे भी विकारां दी गंदगी दे नाल भरिया है। इहदा मतलब अपने अंदरों विकारां दा जीवन अजे भन्निया नहीं। सतगुरु दे हुक्म दे विच रह के सतगुर कै भै भन ना घड़ियो। गरीब नवाज सतगुरु जी बख्शिश करदे कहंदे देखो किन्ना अंधा हो गया मनुख। ਇਹਦੇ ਕੋਲ दीपक भी है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ज्ञान भी है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ गुरु ਦਾ शब्द हुक्म भी है, पर उस हुक्म दे नाल अपने अंदरों विकारां वाला जीवन भन्निया नहीं।
ते अपने जीवन नूं घड़िया नहीं, रहै अंक समाए। जिस जीवन नूं घड़िया सतगुरु जी दी गोद दे विच समाउणा सी, वेखो किहो जिहा मनुख है, अंधे विछड़ चोटां खाए। सतगुरु दा शब्द कोल है, फिर भी मालक तो टुट के ठोकरां ही खा रहा है। ये साडी तस्वीर है, ये मनुख दी तस्वीर है। सतगुरु जी बख्शिश करन, अन दिन सहसा कदे ना चुकै। अन दिन निता प्रति, सहसा भरम, निता प्रति ये अंदर भरम बनया रहिंदा है। भुलेखिਆਂ 'ਚ ही अपना जीवन कट्टी जाता है, भरमां 'ਚ पिया होया जीवन बतीत करी जाता है, भटकदा रहिंदा है। अन दिन सहसा कदे ना चूकै, निता प्रति रोजाना भरम सहसा तौखला बनया रहिंदा है। वो तौखला इहदे अंदरों खत्म नहीं हुंदा। बिन शब्द दुख पाए, गुरु दे शब्द तो बगैर ये सदा दुख ही पाउंदा है, ते दुखां दे विच ही इहदा जीवन खत्म हो जाता है। सुख नहीं इहनूं कदे नसीब हुंदा। सुख तां ही नसीब होवेगा ना जे गुरु दा शब्द जीवन विच कमावेगा। गुरु दा शब्द पढ़िया भी जरूर, उहदी विचार अर्थ भी विचार ले, पर उहनूं जीवन विच कबूलिया ही नहीं, ते बेनती करा फिर सुख नहीं, दुखां दा ही घर जीवन दे विच भरदा है, दुख ही आउंदे ने। सतगुरु जी बख्शिश करन, एक बड़ा प्यारा आपां जपजी साहिब विच सतगुरु जी दा बचन पढ़दे हैं। हजूर जी बख्शिश करदे ने, गावीए गाउणा, सुणीए सुनना, इत्थों तक सीमित नहीं, मन रखिए भाओ। जो गाविया है, जो सुनिया है, ਉਹਦੇ ਤੇ मन दे विच प्यार बना के रखना। प्यार बना के रखने का भाव ਉਹਨੂੰ कबूलना, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। की होवेगा? दुख परहर सुख घर लै जाए। दुख खत्म, सुख जीवन रूपी घर दे विच भर लवांगे आपां। हुण गाविया है, सुनिया है, मैं बेनती करा पर उन्हें जीवन विच अपनाया नहीं, कबूलिया नहीं, फिर याद रखना सुख नहीं। सतगुरु जी बख्शिश करन, हजूर जी बख्शिश करते ने, सतगुर कै भै भन ना घड़ियो, रहै अंक समाए। अन दिन सहसा कदे ना चूकै, बिन शब्द दुख पाए। शब्द तो बगैर है, गुरु के ज्ञान तो बगैर है, गुरु के उपदेश तो बगैर है, ते जीवन दुखां दे नाल ही भरिया रहिंदा है, दुख ही पाउंदा है जीवन। उहदे जीवन विच की हुंदा है फिर? काम क्रोध लोभ अंतर सबला। उहदे जीवन च काम होवेगा, क्रोध होवेगा, लोभ होवेगा, विकार ते उहदे जीवन दे विचों सानू दिखाई देणगे। गुरसिखां अंदर सतगुर वरतै, उहदे जीवन दे विच सतगुरु वरतदा पिया, इह सानू दिखाई नहीं देवेगा। विकार दिखाई देणगे उहदे जीवन च, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਝਲਕਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਝਲਕਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਐਸੀ, ਕਾਮ क्रोध लोभ अंतर सबला, नित धंधा करत विहाए। वो धर्म नूं भी धंधा बना के ही अपने जीवन दे विच वरतदा है। वो धर्म नूं धंधा बना के ते वरतदा है, पर धर्म नूं वाहिगुरू परमात्मा दी बंदगी नहीं बना पाउंदा। धर्म नूं धंधा, माफ करना, एक अटल सच्चाई है। किते समाज विच झात मार के देख लो, अज धर्म नूं धंधा ही बना के वरत रहे हैं। सिख पंथ दे बड़े विद्वान होए ने, महान प्रिंसीपल गंगा सिंह जी। मैं उन्हां दी रचना पढ़ रहा सी, वो कहंदे मैनूं किसी ने सवाल किया, दुनिया दे इतिहास दा सब तो खुश नसीब दिन किहड़ा? दुनिया दे इतिहास दा। कहंदे मैं बड़े मान दे नाल दस्सिया, दुनिया दे इतिहास दा खुश नसीब दिन ओ जदों कोई रब्बी पुरुष संसार विच आया ते उन्हें रब दी गल सुनाई। जिस दिन गुरु नानक जी आए, जिस दिन रब दी गल करन वाले रब्बी पुरुष आए, मुहम्मद जी आए, जिन्हां ने रब दे धर्म दी गल कीती,
जिन्हां ने रब दे नाल जोड़िया, रब दी गल सानू सुनाई। दुनिया के इतिहास का सब तो खुश नसीब दिन वो। कहते अगला सवाल मैनू कीता, फिर दुनिया के इतिहास का सब तो बद नसीब दिन केड़ा? जे खुश नसीब है तो बद नसीब भी होगा ना। दुनिया के इतिहास का सब तो बद नसीब दिन केड़ा? प्रिंसीपल जी लिखते हैं, कहते मैं सोची पै गया केड़ा दिन हो सकता दुनिया के इतिहास का बद नसीब। साडे जीवन च कोई घटना वरत जाए ना, आपां कहने बड़ा बद नसीब दिन अज, पर दुनिया के इतिहास का बद नसीब दिन। कुछ देर सोचण तो बाद प्रिंसीपल जी कहन लगे, सज्जणा दुनिया के इतिहास का सब तो खुश नसीब दिन वो जदों रब की गल दस्सण वाले, रब का धर्म दृढ़ करवाउण वाले रब्बी पुरुष आए। दुनिया के इतिहास का बद नसीब दिन वो जदों उन्हां दा दिता होया धर्म मनुख ने धंधा बना के वरतना शुरू कर दिता। धर्म नूं धंधा बना लिया, रोटी का साधन बना लिया। गुरु कृपा करे अज धर्म नूं धंधा बना बना के लुटिया जाता है। मुआफ करना, अज्ञानता के अंधेरे च इन्ने अन्ने हो गए आ, असीं धंधे विच ते धर्म दे विच फर्क समझना भुल गए। असीं धंधे नूं धर्म समझ समझ के पूजी जा रहे। धर्म दे नां ते रोटियां खाण वाले, धंधा बना के वरतन वालियां दे अगे नक रगड़ना, धंधे नूं धर्म समझना है। डेरियां दे विच जा जाके झोड़ियां अड्ड के उन्हां दे पैरां ते नक रगड़ने। मैं बेनती करा, धर्म नूं धंधा बना के वरतन वाले जिहड़े लोक ने उन्हां दे धंधे नूं असीं धर्म समझी बैठे आ। ये धंधा है। किसी ने 100 रुपया मत्था टेक दिता ते प्रशाद मिल जाएगा, किसी ने जाके कहा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, सारे चेलियां दे कंन खड़े हो जाते हैं। ये फतेह बुलाउण वाला जिहड़ा है साडे बाबे नूं मनदा नहीं, ध्यान रखियो। इन्हें 100 रुपया मत्था नहीं टेकिया। धंधा नहीं तो की है? धर्म धंधा नहीं, धर्म बंदगी है। धर्म रब का प्यार है। धर्म रब का दसिया होया मार्ग है, रस्ता है। वो रस्ता जिहड़ा रब दे घर तक पहुंचाउंदा है। मुआफ करना, अज धर्म नूं असीं वो बना के धंधा रख दिता है। गुरु बख्शिश करे जिथे असीं जमीर वेच वेच के रोटी खाना शुरू कर दी है। धर्म जमीर नूं जगाउंदा है, धर्म मर्दां दा पंथ बनाउंदा है। मुआफ करना, धर्म नूं धंधा बनाउण वालियां ने मुर्दियां दी कौम बना के सानू रख दिता। धर्म इज्जतां दी रखवाली करदा है, धर्म नूं धंधा बनाउण वाले अज इज्जतां नूं बर्बाद करदे ने। हकीकत, अटल सच्चाई। धर्म जिहड़ा है वो तो यह सिद्धांत दृढ़ करवाउंदा है, मेरा सिर जावे तां जावे, मेरा सिੱਖੀ सिदक ना जावे। धर्म नूं धंधा बनाउण वालियां ने सिੱਖੀ सिद्धांतां दीआं जिन्नियां धज्जियां ते घाण कीता है, शायद कोई दुनिया की हुकूमत इन्ना कर सकी होवेगी। धर्म कहंदा मेरा परिवार उजड़दा उजड़ जावे, मेरा पंथ वसना चाहिदा है। धर्म नूं धंधा बनाउण वाले कहंदे मेरे परिवार नूं सुख ते कुर्सी चाहिदी है, पंथ जिथे उजड़दा उजड़ जावे। आत फर्क पै गया। अज धर्म नहीं रहा। जिहड़े गुरु नानक साहब जी ने बचन कीते सी ना भाई लालो जी नूं संबोधन करके, मैं महसूस किया अज समाज की हकीकत बन गया। उन्हां कहा सी शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। ना साडे च अज शर्म ते ना धर्म, सारे पासे कूड़ ही प्रधान तुरिया फिर रहा, कूड़ ही प्रधान। धर्म नूं धंधा बना लिया। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने अपना सीस दे के धर्म की राखी की सी। उस धर्म नूं धंधा बना के वरतन वाले अज ऋण उतार यात्रा के नाम के उत्ते मैं बेनती करा गरीब नवाज सतगुरु जी बख्शिश करन, सतगुरु पातशाह जी के सिद्धांत दीआं धज्जियां उड़ा रहे। मैं हैरान, ऋण उतार यात्रा। ऋण उतार का अर्थ की? करजा लाउणा। जिहदे नाल संबंध तोड़ना होवे ना ते कोई लैण देण होवे, उहनूं दे के कहदा लओ जी तेरा मेरा करजा हुण खत्म है, हुण तेरा मेरा कोई संबंध नहीं रह गया लैण देण दा। इहदा मतलब गुरु तेग बहादुर साहब जी तो संबंध तोड़ना है। शुकराना यात्रा हुंदी है, मनदे भी शुकराना करना। ऋण उतार गुरु बख्शिश करे। मैं सोचदा किन्ने क साडे विद्वान सिੱਖੀ सिद्धांतां नूं जाणदे होणगे
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪੜਨਾ ਗੁੜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਪੜਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਧੰਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਰੀਏ ਝਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪੜਨਾ ਗੁੜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ, ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਨੇ? ਧੰਦਾ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਏ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਮਾਰੀਏ ਝਾਤ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਕਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੜਨਾ ਗੁੜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਬੋਲਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਅਗਲਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ 20 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, 30 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੜੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕੀ, ਕੇਵਲ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪੜਨਾ ਗੁੜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਹਜੂਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਪੜਨਾ ਗੁੜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ। हे ਵਿਦਵਾਨ, हे ਪੰਡਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੇਵਲ ਪੜਨ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਨਾ? ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਧੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈ ਤਿਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਨਾ ਸਕੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਨਾ ਸਕੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਨਾ ਸਕੀ। ਦੱਸ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ? ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੜ ਥੱਕੇ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੇਵਲ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰ
तेरे अंदर वाहिगुरु जी नाल प्यार ते बनिया नहीं, पढ़ के माया दे प्यार दे रंग दे विच ही रंगिया गया तेरा जीवन। हे पंडित दस, ये फिर धंधा नहीं ते की है? ये धंधा नहीं ते की है? किन्ना चंगा हुंदा पहले मन प्रबुद्ध है अपना। पहला तो अपने मन नूं समझाउण लो, फिर दूसरिਆਂ ਨੂੰ समझ। गुरु पातशाह जी के शब्द की समझ कराउणो, तेरा एक एक बोल किसी के जीवन के उत्ते चोट मारदा ते उहदा जीवन बदल जाता। शब्द उही है। गुरु नानक जी ने शब्द गायन किया है, सज्जन ठग वर्गे भाई सज्जन शाह बन गए। साडे जीवन अजे भी सज्जन ठग तो 2 कदम थले डिगे हुए हैं। शब्द उही है, बाणी उही है। गुरु कृपा करे, गुरु बख्शिश करे, किते तू इस शब्द दे नाल बाणी नाल अपना जीवन घड़िया हुंदा। याद रख, तेरे मूँह दे विचों बाणी दा निकलिया होया एक भी उपदेश रूपी शब्द अगलियां दे जीवन में घड़ के रख दिंदा। अज आपां पुछदे ना कई जिहड़े 60-70 साल तो उपर दी उम्र दे ने, उन्हां नूं सिੱਖੀ दी गल वो दस दिंदे, सानू दादी जी, दादा जी, नानी जी, नाना जी गोदी च बिठा के ना साखियां पढ़ाउंदे हुंदे सी, सानू गुरबाणी दी अर्थ समझाउंदे हुंदे सी। असीं भी तां उदों दे सिੱਖੀ दे रंग विच रंगे होए आ। अज दादी विचारी रौला पा पा के थक जाती है, दादा विचारा आवाजा मारदा रहिंदा है, नानी नाना आवाजा मारते ने, बच्चेओ आओ मेरी गल सुनो। बच्चे कहते तुहाडा ते काम है रौला पाउणा। क्यों? क्योंकि अज अपने जीवन खत्म हो गए। अज किसी नूं पुछिए भाई तू गुरबाणी की जिहड़ी विद्या पढ़ी कित्थों पढ़ी? मैं गुरुद्वारा साहिब जी के ग्रंथी सिंह दे कोलों 5 ग्रंथी पढ़ी। 60-70 साल की उम्र के बजुर्ग दसणगे अज। मैं गुरुद्वारा साहिब के भाई साहब जी कोलों आ संथ्या लई, भाई साहब जी मैनूं बाणी पढ़ाउंदे हुंदे सी। अज अज गुरुद्वारे के ग्रंथी विचारे अनाउंसमेंटां कर करके सददे ने, भाई गुरपुरब आ गया गुरुद्वारा साहब आ जाओ, फिर भी कोई मनण नूं तैयार नहीं। क्यों? अपना जीवन खत्म हो गया, साडी गल मनण नूं कोई तैयार नहीं। गुरु बख्शिश करे किते सिद्धांत साडे जीवन च अज भी आ जाए, किते साडे जीवन दे विच अज भी गुरु दी बाणी वरते। खैर, दूजे भाए प्यार, जीवन विच गुरु दे शब्द नाल प्यार नहीं, केवल माया नाल प्यार बढ़िया होया। सो पढ़िया, गुरु अमरदास पातशाह जी बख्शिश करते हैं, प्यारिया असल विच ओ पढ़िया होया विद्वान है। सो पंडित बीना, ओ विद्वान पंडित सियाणा है। केड़ा? गुर शब्द करे विचार, जिहड़ा गुरु दे शब्द दी विचार करता है, जिहड़ा दसदा है गुरु दा शब्द की सानू करन लई कह रहा है, गुरु दे शब्द विच की सानू उपदेश मिलिया है, आपां जीवन विच कमाईए। अंदर खोजै, केड़ा सियाणा पंडित है, विद्वान पंडित है, जिहड़ा अपने अंदर नूं खोजदा है, गुरु दे शब्द दी विचार करदा है, फिर अपने अंदर जीवन नूं खोजदा है। बड़ा गहरा नुकता गुरु साहब जी ने बख्शिया है। इत्थे ते कोई किसी पासे नूं सुरत चढ़ाउण दी गल करदा है, कोई किसी पासे नूं सुरत चढ़ाउण दी गल करदा है, कोई भोरिया च बहा दिंदा है, कोई गिणतियां मिणतियां विच ही ला के उलझाई रखदा है। गुरु अमरदास जी बख्शिश करदे, दुनिया दे लोको आओ तुहानूं दसीए असल दे विच वाहिगुरू परमात्मा दे नाल सांझ किवें बनदी है। हजूर जी कहंदे ने, गुर शब्द करे विचार, शब्द दे दद्दे नूं सिहारी शब्द दी, गुरु दे शब्द दी विचार करे, फिर अंदर खोजै, गुरु शब्द दी विचार के मुताबिक अपने जीवन नूं देखे, मेरा जीवन कित्थे खड़ा है, अपने जीवन की खोज करे, अपने जीवन नूं पड़ताले। जो गुरु जी कह रहे ने कि मैं उही कुछ कर रहा, जो गुरु जी समझा रहे ने कि उही कुछ मेरे अंदर विचार चल रही है, उही कुछ मेरे जीवन की करनी बन चुकी है। जे नहीं ना करनी ओहो जी बनी, बेनती करा फिर केवल ते केवल धंधा, उन्हें धर्म नहीं कह सकते। आ नुकता समझण योग जे, धर्म ते धंधे दे विच फर्क की है। खैर, अंदर खोजै, वो अपने अंदर की खोज करता है, अपने जीवन नूं खोजदा है। तत्ल है, जो गुरु के शब्द की विचार करके असी अपने जीवन नूं घोखांगे ना, फिर की होवेगा, सानू तत्त मिलेगा, सानू पता लग जाएगा चंगियाई ते बुरियाई की है, सानू पता लग जाएगा धर्म ते धंधे च फर्क की है,
सानू पता लग जाएगा सच ते झूठ च फर्क की है। झूठ नूं छड्ड देंगे, सच नूं अपना लवांगे, तत्त मिल गया। तत्त की है? जीवन की सच्चाई। तत्त की है? जो हकीकत है। जिवें दुध दे विच मक्खण हुंदा है ना, मक्खण की है? दुध की हकीकत, दुध की सच्चाई। ते जिहड़ी दुध दे विच खोट पानी हुंदा है ना, वो लस्सी के रूप में पासे हो जाता है। साडा तत्त की है? साडा तत्त है जीवन की सच्चाई। जिस सच्चाई तो मुनकर हो चुके हैं, वो जीवन की सच्चाई जिसनों रब्बी जोत कहने हैं, जिसनों परमात्मा का अंश कहने हैं। इंज कह लीए कि जिसनों असी वाहिगुरु परमात्मा का अंश जीव आत्मा कहने हैं। हुण ते असी शरीर नाल जुड़े हैं, शरीर के इंद्रियां नाल जुड़े हैं, शरीर के रसां नाल जुड़े हैं। केवल साडा संबंध सुरत का शरीर के नाल बनिया है। जदों गुरु के शब्द की विचार करके जीवन नूं घोखांगे, जीवन चों बुराइयां पासे ते चंगियाई नूं अपनावांगे, मैं बेनती करा फिर शरीरक स्वादां दे विच नहीं उलझांगे, उत्थे आत्मक रस प्राप्त करांगे। उत्थे समझावांगे अपनी जबान नूं, आन रसा जेते तैं चाखे, निमख ना तृष्णा तेरी लाथे, हर रस का तू चाख है साध, चाखत होए रहे बिस्माद। उत्थे आपां सतगुर सच्चे पातशाह जी बख्शिश करन, साडे जीवन की सांझ वाहिगुरु जी नाल बनेगी। उत्थे अंदर आत्मा कूका मार मार कवेगी, तेरी वडियाई तू है जानदा, तुद जेवड़ अवर ना कोई, तुद जेवड़ होर शरीक होवे, ता आखिए तुद जेवड़ तू है होई। समझ आ जाएगी सानू। डेरेदारां दी दुकानां बंद हो जाणगियां, भरमां विच पा के लुट्टण वाले जेड़े लोग बैठे हुए ने दुकानां खोल के, ज्योतिषी उन्हां दीयां दुकानां बंद हो जाणगियां। असी फिर कुंडलियां नहीं बच्चों के विआहां ते मिलाउंदे फिरांगे। असी गुरु के चरनां दे विच अरदास करके, गुरु ते यकीन करके अपने बच्ची बच्चे के कारज नूं संपूर्ण करांगे। गुरु ते यकीन होवेगा सानू। असी वास्तु शास्त्र वालियां दे आखे ला के अपने घर नहीं ढावांगे। असी अपने बने हुए घर दे विच बैठ के सारा परिवार शाम के वक्त गुरु की बाणी पढ़ांगे, गुरु के शब्द की विचार करांगे, तड़के उठ के गुरबाणी का जाप होवेगा ते सतगुर सच्चे पातशाह जी दे ना वचनां नूं असी साक्षात्कार च देखांगे। जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से अस्थिल सोएन चौबारे। बेशक अंतरीव अर्थ ये मनुख के हिरदे रूपी घर नाल जुड़े ने, परंतु फिर बाहर भीतर एक हो जानो। सतगुरु जी बख्शिश करन, अंदर खोजै गुरु के शब्द की विचार करता है ते अपने अंदर नूं खोजदा है, वो सियाणा विद्वान है। वो सियाणा विद्वान है। केवल ये नहीं पढ़ लिया, ज्ञान हासिल कर लिया, लोगों को सुना दिता ते आप उथे दा उथे ही खड़ा है, वो धंधा है। अंदर खोजै गुरु शब्द की विचार ते फिर अपने जीवन नूं घोखदा है, खोजदा है। मेरे जीवन दे विच आ रब्बी गुण आए जिहड़े गुरबाणी च गुरु साहिब जी ने बख्शे। तत्त है फिर की हुंदा है? फिर जीवन का तत्त लभ लैंदा है, प्राप्त हो जाता है जीवन का तत्त। बुराइयां जीवन चों खत्म। तत्त की है? जीवन दे विचों बुराइयां दा खात्मा, झूठ दा खात्मा। जीवन दे विचों जीवन दे विच सच जिहड़ा जीवन दा है वो साडी समझ विच आ जावे, इहनूं कहा गया तत्त। सतगुरु जी बख्शिश करन, जिहड़ा आपां बचन पढ़दे हैं ना, प्राणी तू आया लाहा लैण, वो जिहड़ा लाहा शब्द गुरु साहिब जी ने वरतिया है, जिस लाहे की गल करदे हजूर जी बख्शिश करते ने, गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चलै मूल गवाए जियो। वो लाहा का अर्थ है जीवन का सच। जीवन का सच गुरमुख लैके जाता है, मनमुख तो झूठ के जीवन में ही गर्क हो जाता है, खत्म हो जाता है। गुरु बख्शिश करे, अंदर खोजै तत्त लहै। जो फिर जीवन की सच्चाई समझ विच आ जाती है ना, पाए मोख द्वार, विकारां तो मुक्ति का दरवाजा प्राप्त हो जाता है। आवागौण तो मुक्ति का दरवाजा जीवन के विचों ही लभ जाता है। फिर गुण निधान, गुणा का खजाना हर वाहिगुरु जी पाया,
गुणा का खजाना वाहिगुरु परमात्मा फिर जीवन के विचों प्राप्त हो जाता है। फिर किते बाहर भालण की लोड़ नहीं पैंदी, फिर बाहर ढूंढण की लोड़ नहीं पैंदी। फिर जीवन के विचों गुणा का खजाना वाहिगुरु परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। गुण निधान हर पाया सहज करे विचार, ਉਹਦੇ अंदर फिर टिका ਹੁੰਦਾ है। सहज ਦਾ अर्थ की है? टिका, अडोलता ਉਹਦੇ अंदर भटकना नहीं। वो दावे नहीं करता मैं सच पा लिया, वो टिकिया रहिंदा मालिक की रजा दे विच, वो मालिक के हुक्म की विचार करता है। धन व्यापारी नानका जिस गुरुख नाम आधार, धन धन गुरु अमरदास पातशाह जी बख्शिश करते हैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ परमात्मा के नाम का ਵਪਾਰ ਕਰਨ वाले ਵਪਾਰੀ ने। मुबारक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ सतगुरु जी के मुख दे विचों निकले हुए बचन उन्हां दे जीवन का आसरा बने ने, जिन्हां ने गुरबाणी नूं सहारा बना लिया जीवन का, जिन्हां ने गुरबाणी नूं अपने जीवन की हकीकत बना लिया है। गरीब नवाज सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, धन व्यापारी नानका, हे नानक वो धनता दे योग ने, वो सत्कार योग ने, वो अदब करन दे योग ने, लायक हैं। गरीब नवाज सतगुरु जी बख्शिश करन। ये इस शब्द का पहला श्लोक अज आपां साझा कीता है। अगला श्लोक अते पौड़ी कल के विचार में आपां साझी करांगे। सतगुरु जी बख्शिश करन। सतगुरु जी का पावन उपदेश साडे जीवन की हकीकत बन जाए, ताकि साडे जीवन की रहो रीति गुरु आशे अनुसार हो जाए। भुल्लां चुक्कां दी मुआफी प्यार विच भेज के सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।